alumni of Harshvardhani College of Hearing for Special Education. I am here to introduce our guest speaker, Mamta Bhosle ma'am. Mamta Bhosle, Special Educator, BA in Autism Spectrum Disorder, first batch of Southeast Asia, BA in Learning Disabilities, MA in Physiology, uh, BA in Psychology, currently working with the Goenka and Education Trust since 15 years. Overall experience of 20 years. Prafulata Don Bosco School, New Horizons Center. She conducts sessions, awareness programs for students and parents. She invited as a resource person for CRE program. She conducted webinar for the teachers and parents. Thank you. Please welcome ma'am. Good afternoon, everyone. Okay. Thank you for the wonderful introduction. Thank you so much. So after technologies, now we are again going to the classroom, and the topic is educational and skill-based intervention for kids with ASD. So, actually, the topic is ASD, handling children with HI children with ASD, autism. So may I know what is autism? What is autism spectrum disorder? Anybody? Please quickly. Difficulty with communication, basically. Okay. Anything else? Stereotypical lack of eye contact. Eye contact. Okay. Lack of eye contact. Repetitive behavior. Repetitive behavior. Lack of social skills. Lack of social skills. Lack of social skills. Very good. So, and it is a which disorder? Spectrum. Autism spectrum disorder. But is it neurological? Neurological disorder. It is a neurodevelopmental disorder. Okay, with the as you said, social difficulties, communication difficulties, and stereotypical behavior. So these are the three triads of ASD. If you want to, diagnose, or if you want to say the child has a risk of ASD, that child should have these three triads: communication issues, stereotypical behavior, and social. Similarity or differences between hearing impaired and ASD. In a hearing impaired, the hearing sense is affected, while the ASD, mostly the senses has a hyper and the hypersensitivity. So they have a sensory issues. Okay, fine. Anything else? Communication and social skills are delayed in both the types of. Correct. Yes. And what are the similarities? What do you think is similar between these two? So we have already seen what is autism. It is a neurodevelopmental disorder. Developmental means the onset happens. जो भी उसके problems है वो 3 years के before दिखाई देते हैं, okay? और neurodevelopmental है, so it is by birth, but उसके जो लक्षण है, उसके जो disorders है, उसके जो निदान करना है हमको, वो 3 years before उसके जो problems है वो दिखाई देते हैं. सो इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन, जैसे हमने बोला. कम्युनिकेशन हमें पता है 2 टाइप्स. एक तो वर्बल है जो हम बात करके करते हैं, नॉन वर्बल जो हमारे बॉडी बिहेवियर से, जेस्चर्स से कम्युनिकेट होता है. तो वहाँ पे भी उनको दिक्कत आती है टू अंडरस्टैंड, और टू मतलब सामने वाले का बॉडी जेस्चर अंडरस्टैंड करना, या फिर अपना मतलब अभी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे
हैंड्स मूवमेंट्स है, ये जो भी है, तो वो उनको करना डिफिकल्ट जाता है. सो सामने वाले को भी उनका अंडरस्टैंडिंग करना, वॉट एवर दे वांट टू से, क्या कहना है उनको, वो समझना डिफिकल्ट हो जाए. स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स जैसे कि फ्लैपिंग है, जंपिंग है, ये सब इश्यूज हैं. ओके, सो दैट इनिशियली पहले ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिसऑर्डर्स थे, तो उसका अभी हम एक ही ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स पे अंडर वो आ जाते हैं. ठीक है, सो ये 3 ट्रायड्स: डिफेक्ट्स इन कम्युनिकेशन, सोशल इंटरेक्शन एंड इंटरेस्ट एक्टिविटीज और स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर. तो ये सब ऑटिज्म के जैसे आप देख रहे हो, इनएबिलिटी टू रिलेट टू चिल्ड्रन, लोगों में मिक्स होना डिफिकल्ट हो जाता है. सेंसिटिविटी, सेंसरी प्रॉब्लम्स है उनको, तो हाइपो सेंसरी हो सकते हैं. सो एक पर्टिकुलर हम देख रहे हैं, वो चाइल्ड इज प्लेइंग विद दैट कार, सो पर्टिकुलर उसका इंटरेस्ट सिर्फ उस पार्ट के रिलेटेड है. हाउ टू प्ले विद द कार ही डजंट नो. तो वैसे चॉइसेस बहुत रूटीन फॉलो करते हैं, टू चेंज समथिंग डिफिकल्ट है उनके लिए. ठीक है, दे डोंट नो व्हाट डेंजर सिचुएशंस में उनको पता नहीं कि ये डेंजर सिचुएशन है. लैक ऑफ आई कांटेक्ट आपने बताया, हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, ओवर सेंसिटिव टुवर्ड्स टच, टुवर्ड्स साउंड्स, टुवर्ड्स लाइट, ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं. हाइपोसेंसिटिव मतलब कभी कभी उनको एक बाल भी है इसमें तो भी उनको सेंसिटिव, मतलब उनको बहुत ज़्यादा लगता है, और कभी कभी जोरों का कुछ लगा तो भी उनको वो सेंसिटिव. तो एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट. ओके, इवन एक चाइल्ड के अंदर भी कभी कभी ओवर सेंसिटिव हो सकते हैं, कभी कभी हाइपर सेंसिटिव हो सकते हैं. और जो ऑब्सेशंस होते हैं, लाइक बिंदी है, सो दे विल हैव ऑब्सेशन टुवर्ड्स द बिंदी, या फिर बेल्ट, किसी भी एक चीज के रिलेटेड ऑब्सेशन हो सकता है. तो उनके लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक, वो कैसे सीखते हैं? आपको क्या लगता है, कैसे सीखते होंगे वो? ओके, व्हाट डू यू थिंक चाइल्ड विद HI, हाउ दे लर्न, वो कैसे सीखते हैं? विजुअल लर्नर्स. सो सेम विथ ASD, दे आर विजुअल लर्नर्स. ओके, कॉन्क्रीट लर्नर्स मतलब जो वो करके सीखेंगे उससे वो ज़्यादा सीखते हैं, इंस्टेड ऑफ हम उनको एब्स्ट्रैक्ट जैसे हम उनको बताएं कि ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, अभी तुम समझ जाओ, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. उनको कॉन्क्रीट मतलब वो करके सीखते हैं. ओके, दे आर विजुअल लर्नर्स. एक्सेसिव फोकस डिटेल्स में जैसे हमने बोला कि वो कार में द चाइल्ड इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन ओनली ऑन द व्हील्स, तो ऐसे वो फोकस अटेंशन उनका बहुत ज़्यादा होता है. टू मेक देम अंडरस्टैंड बहुत ब्रॉडली हमें उनको हेल्प करनी पड़ती है. इजीली डिस्ट्रैक्ट. ओके, मॉडलिंग पे सीखना, जैसे मैं अभी कर रही हूँ और तुम सीखो नहीं, फर्स्ट वी हैव टू शो देम, बट देन वी हैव टू इन्वॉल्व द चाइल्ड व्हाइल डूइंग समथिंग. सो ऑर्गेनाइजिंग और सीक्वेंसिंग डिफिकल्टीज, तो ये सारे बहुत सारे लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स है चाइल्ड विद ASD. ओके, मूवमेंट डिफरेंस मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांजिशन इज अ डिफिकल्ट फॉर देम. ओके, फिर लिमिटेड कम्युनिकेशंस है, उनके वोकैबुलरी लिमिटेड है. दे अंडरस्टैंड बट दे आर नॉट एबल टू यूज दैट वोकैबुलरी. वो बात करना, वो शब्द यूज करना उनके लिए डिफिकल्ट जाता है. ओके, सोशल इंटरेक्शन, सोशल जो नॉर्म्स है, रेगुलेशंस है, उसको समझना, उसको अप्लाई करना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है. और उनको रूटीन बहुत पसंद होता है. सो ये सब उनके लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो हम अगर उनके साथ डील करें तो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू दिस. जैसे हमने बोला कि इम्पेयरमेंट, इस अभी जो हमने लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक देखे तो उसको कैसे हैंडल करना वो हम देखेंगे आगे जाके. नाउ पहले हम देखते हैं कि उनका कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट है जो हमने देखा.
सो आपको क्या लगता है कि उनका कम्युनिकेशन में क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? मैं भी बोर हो जाऊंगी अगर आपने आंसर नहीं दिया। करेक्ट, दे टेक लिटरली, मतलब उसके रिलेटेड जो नॉन वर्बल जेस्चर्स है या फिर हम सार्केज्म यूज करते हैं, सो दे विल नॉट अंडरस्टैंड द सार्केज्म कि ये ऐसे नहीं है, बट दे विल टेक दैट लिटरली. ओके, You said HR plus ASD, not only LP or not only single. Comorbid with the yes, yes, yes. Yeah, sometimes they have equiliria also. Post equiliria होता है या फिर अभी equiliria क्यों हो सकता है? What do you think equiliria क्यों होता है? Why they repeat? Because they like that intonation pattern, the singing pattern. So whenever the Yes, what you are saying? Lacking in receptive language. Yes, they don't understand. If I ask them, what is your name? They will repeat what is your name. How are you? They will repeat how are you, because they don't know how to answer that question. Or sometimes, as you said, post equiliria होता है, उन्होंने कभी तो कुछ सुना है and they are repeating that thing again and again. Yes. उनको कन्वर्सेशन करना, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, आप मुझे आंसर दे रहे हो, मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, सो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है, सो वो इनिशिएट करना, वो सस्टेन करना, मतलब वो कम्युनिकेशन खुद से सामने वाले से बात करना और जो बातें हैं वो कंटिन्यू करना, उसमें भी उनको दिक्कत हो सकती है. स्टेरियोटाइप यूज ऑफ लैंग्वेज, एक टिपिकल रोबोटिक लैंग्वेज वो यूज करते हैं. हम जो भी सीखते हैं वो मोस्ट ऑफ टाइम हम इमिटेशन से सीखते हैं, राइट? बट चाइल्ड विद ASD हैज लैक ऑफ इमिटेशन, दूसरों को फॉलो करके देख के वो नहीं सीख पाते. So because of all these issues, playing is also difficult. दूसरों के साथ कन्वर्सेशन करना, बात करना, प्ले का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो समझना, उस लोगों के साथ मिक्स होना उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है. सो क्या कर सकते हैं हम कम्युनिकेशन के लिए? इफ द चाइल्ड मोस्ट ऑफ टाइम मतलब कोई बच्चे होते हैं वो नॉन वर्बल भी होते हैं, दे विल नॉट एबल टू स्पीक, और कभी कभी वो वर्बल होते हैं बट दे डोंट हैव प्रॉपर लैंग्वेज और प्रॉपर वोकैबुलरी टू कम्युनिकेट. सो पिक्स, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन, जहाँ पे आप फोटोज, क्यू कार्ड्स, पिक्चर्स ये सब यूज कर सकते हैं, और उस तरीके से मतलब आफ्टरवर्ड्स में मेरे पास कुछ मटेरियल है, मैं आपको दिखा दूंगी. तो उसमें एक छोटे छोटे पिक्चर्स और वो सब है. तो आप सपोज द चाइल्ड आई वांट ये कम्युनिकेशन बुक है, समथिंग लाइक दैट. पेक्स हम यूज कर सकते हैं. पेक्स हैंडी भी होते हैं, ये हम अगर की हमारे की चेन में डालेंगे तो वो हैंडी भी हो सकते हैं. और यहाँ पे लाइक आई वांट, सो व्हाट डू यू वांट टू ईट, द चाइल्ड विल चूज एंड गिव यू द कार्ड. टू टीच देम, इनको ये सिखाना एक अलग प्रोसीजर होता है, बट ये यूज इस तरीके से होता है, ठीक है? अलग अलग उस पे ऑप्शंस है, अलग अलग ये है उस बुक में. तो ये कम्युनिकेशन बुक उनका हो सकता है. अभी तो टेक्नोलॉजी है, सो देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजी, मतलब आईपैड पे आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स है जहाँ से हम कम्युनिकेशंस इनके डेवलप कर सकते हैं. So these are some facts. तो ये कार्ड्स हैं विद साइंस, वहाँ पे ये मैंने जो बताया कि किचन में डाल के भी हम यूज कर सकते हैं. सो आई वांट, सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस. चाइल्ड, बच्चा वो चूज कर सकता है, पॉइंट कर सकता है, वो निकाल के वहाँ पे लगा सकता है. ओके,
तो दिस इज easy for the child to communicate. हमने पहले देखा था लर्निंग स्टाइल्स और लर्निंग स्टाइल्स ऑफ ASD. तो ये सब है सेम विथ पिक्चर्स. Okay, they are very obsessed with some particular sequence, ordering. एक छोटे चीज पे वो obsessed होते हैं, जैसे वो कार के wheels. Okay, they can't engage with other people. Social behavior उनका develop नहीं है, तो वो लोगों के साथ involve नहीं हो सकते. Sensitive है, sensory issues, lights, sound. Okay? तो ये सब ध्यान में रखते, ये सब हमें ध्यान में रखना है while we are handling with child with ASD. तो उनकी ये लर्निंग स्टाइल हम उनको कैसे सपोर्ट करें. हम सब कुछ उनको नहीं सिखा सकते. सो वी हैव टू प्लान IP. वी हैव टू हैव अ प्रॉपर कंटेंट, स्पेसिफिक करिकुलम फॉर दैट चाइल्ड. ओके, हम पूरा जो उनका लेसन्स है वो पूरा नहीं सिखा सकते, बट उसमें से एक कंटेंट हम उनको सिखा सकते हैं. डिपेंड ऑन द चाइल्ड, ऑब्वियसली डिपेंड ऑन द चाइल्ड्स IQ और द चाइल्ड्स लेवल. Okay, we have to have supportive teaching environment. Generalization strategies जो भी हम सिखा रहे हैं वो सिर्फ उसी कमरे में सीमित नहीं रहे. वो अलग अलग लोगों के साथ सेम स्ट्रेटजी उनको यूज करना आना चाहिए, अलग अलग एनवायरनमेंट में सेम स्ट्रेटजी यूज करना आना चाहिए. ऐसे हमें उनको सिखाना है. प्रेडिक्टेबल रूटीन. चाइल्ड विथ ASD ओनली मोस्टली एंशियस होते हैं. उनको फ्यूचर के बारे में दे कांट प्रेडिक्ट कि क्या होगा, और उसके वजह से वो ज़्यादा एंशियस होता है. उसके वजह से ज़्यादा बिहेवियर हम बोलते हैं कि चाइल्ड हैज़ बिहेवियरल इश्यूज. तो वो जो बिहेवियर्स होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ एंशियस. उनको पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है. इसीलिए अगर हम उनको हेल्प करें प्रेडिक्टेबल रूटीन में तो उनके लिए वो ज़्यादा अच्छा होगा. वो हम आगे देखेंगे कैसे कर सकते हैं. Then functional approach to problem behavior. जो भी प्रॉब्लम है वो क्यों है, कहाँ से. अगर एक बच्चा रो रहा है या फिर वो बिहेवियर दिखा रहा है, वो क्यों दिखा रहा है. आपको क्या लगता है जब बच्चा बिहेवियर, जो भी हम बताते हैं कि बिहेवियर इश्यूज है, तो आपको क्या लगता है उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं. अटेंशन सीकिंग. ओके, और Lack of communication skills. communication, he is not able to express. Then socially connect नहीं हो पा रहे. sensory issues. So either the child will have sensory issues, कुछ तो sensory गड़बड़ हो गया है, lights बहुत ज़्यादा है, noise बहुत ज़्यादा है, maybe because of that the child is showing the behavior. या फिर वो express नहीं कर पा रहा कि मुझे क्या चाहिए, that is why he is showing the behavior. So language, social, और कभी कभी ऐसे होता है lack of interest, और वो anxious है कि मुझे ये चीज़ नहीं आ सकती, मैं ये नहीं कर सकता. So that is where the child is anxious, इसीलिए वो behavior दिखाता. तो ये reason we need to find out कि क्यों दिखा रहा है behavior. ट्रांजिशन में उनको मैंने जैसे बताया कि एक क्लास से दूसरे क्लास जाना है, एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे जंप करना, अभी मैथ्स, अभी इंग्लिश, अभी साइंस. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू ट्रांजिट, यहाँ से वहाँ जाना. तो वो भी हमें प्लान करना है, उनको वो बताना है विजुअली. दे शुड अंडरस्टैंड कि इसके बाद ये है. एक्टिव फैमिली एनवायरनमेंट. ASD में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, बिकॉज जैसे मैंने बोला वो एप्लीकेबल टू एवरीवेयर होना चाहिए. क्लासरूम 1-to-1 सेशन में हुआ ऐसे नहीं, वो सेम थिंग पेरेंट्स शुड नो कि हम क्या कर रहे हैं. सो पेरेंट्स भी वो सेम चीज़ सब जगह पे. तो उनका जो हैंडलिंग है, अगर वो ऐसे हुआ यूनिवर्सली सेम रहा, सो इट्स इजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड कि मुझे क्या करना है. ओके, हाईली ट्रेन्ड स्टाफ एंड एडिक्वेट रिसोर्सेज.
सो ये एक बर्थडे केक है कि हाउ कैन वी स्ट्रक्चर ASD's लर्निंग, ठीक है। सो फर्स्ट इज फिजिकल स्ट्रक्चर, जहाँ पे हम उनका सेशंस ले रहे हैं, जहाँ पे हम उनको सिखा, जो भी लर्निंग एनवायरनमेंट है दैट शुड बी स्ट्रक्चर। फिर विजुअल सपोर्ट, क्या करना है उनको, वो हमें उनको विजुअल सपोर्ट से सिखाना है। वर्क एक्टिविटी सिस्टम कैसी होगी, स्टार्ट कहाँ से होगा, एंड कहाँ से होगा, हाउ डू आई नो दैट दिस इज फिनिश, हाउ डू आई नो दैट दिस इज स्टार्ट, गोइंग टू स्टार्ट। रूटीन्स एंड स्ट्रैटेजीज, रूटीन क्या होने वाला है, डेली रूटीन क्या है, उसमें क्या कैसे स्ट्रैटेजीज हम इन्वॉल्व करेंगे, ओके। एंड स्ट्रक्चर टास्क, ये हम डिटेल में देखेंगे, ओके। सो ये सब, ये जो बर्थडे केक है वो इस क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ मी, हाउ डू आई नो दैट आई एम मेकिंग प्रोग्रेस, हाउ डू आई नो आई हैव फिनिश्ड एंड व्हाट्स नेक्स्ट। सो फर्स्ट है फिजिकल स्ट्रक्चर। So physical structure is about the furniture, about the material, about the environment, okay? So ये सब कैसे होना चाहिए, how it should be, बच्चे को क्या पसंद है, वो कौन से so उस अलग अलग एरिया को भी हम डिवाइड कर सकते हैं कि दिस इज अ ट्रांजिशन एरिया, दिस इज अ प्ले एरिया, दिस इज अ ग्रुप एरिया, दिस इज एक्टिविटी एरिया और अ ब्रेक एरिया। बिकॉज चाइल्ड मोस्ट ऑफ टाइम उनको बीच बीच में ब्रेक की जरूरत, बिकॉज ज़्यादा स्टिमुलस हो गया तो वो बिहेवियर दिखाते हैं। सो फॉर देम टू रिलैक्स समवेयर, सो दैट एरिया शुड बी मेंशन, ओके। फिजिकल, क्लियर फिजिकल एंड विजुअल बाउंड्रीज, क्लियर विजुअल पाथवेज एंड मिनिमाइज ऑडिटरी एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शन। मतलब उनका ये जो एनवायरनमेंट है दैट शुड बी क्लियर फॉर देम कि यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ये होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है विजुअल सपोर्ट। जैसे हमने बोला रूटीन उनको पता होना चाहिए कि एक के बाद एक, दैट इज कॉल्ड डेली स्केड्यूल, ओके। कि अभी मैथ्स का पीरियड है, फिर इंग्लिश है, जो भी है, जो डेली प्रेयर्स है, ब्रेक टाइम है, एक्टिविटी टाइम है, सो दैट इज डेली शेड्यूल। देन क्लासरूम रूल्स, वो भी विजुअलाइज, सिट, रेज योर हैंड, सिट क्वाइटली, तो वो भी विजुअलाइज होना चाहिए, सो दे विल अंडरस्टैंड मोर। डिफाइन एरियाज, ब्रेक एरिया, स्टडी एरियाज, वो भी विजुअल सपोर्ट से उनको दिखाना है। इसमें इंडिविजुअल विजुअल सपोर्ट भी आता है, जैसे स्केड्यूल्स में ऑब्जेक्ट पिक्चर्स, वो अभी क्या कर रहे हैं, फॉर दैट पर्टिकुलर चाइल्ड क्या स्केड्यूल है, दैट स्केड्यूल विल कम, देन फर्स्ट, देन मतलब फर्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, व्हाट आई एम वर्किंग फॉर, ठीक है। ये सारे विजुअल स्केड्यूल्स में आते हैं। ये ऐसा रूटीन है that will help us to teach them flexibility, क्योंकि हम इस रूटीन में चेंज कर सकते हैं with the visual support, कि पहले ये है, फिर नेक्स्ट टाइम अगर आपको मैथ्स आगे लेना है या फिर इंग्लिश का क्लू कार्ड आगे लेना है, that you also you can do it, but in the morning you have to show the child कि ये आज होने वाला है। So ये visual schedule है, routine है, but again you can change it every day, जो भी जैसे भी requirement है उस तरीके से। So this is the routine that teaches flexibility to the child. So these are the types of visual schedule. कैसे बना सकते हैं हम विजुअल स्केड्यूल्स, उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिया है, ऑब्जेक्ट्स, फोटोग्राफ से, ड्राइंग से, आइकन से, ओके। फिर स्केड्यूल फॉर्मेट क्या होना चाहिए, 1 at a टाइम, टॉप टू बॉटम है, मल्टीपल रोज में कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट विजुअल स्केड्यूल्स के टाइप्स है। प्लेसमेंट ऑफ द शेड्यूल की ऑन हैंड है, जैसे हमने अभी विजुअल्स डिफरेंट पिक्चर्स देखे, तो ऑन हैंड है, स्टेशनरी विजुअल स्केड्यूल है जो परमानेंटली वहाँ पे है, पोर्टेबल स्केड्यूल है, या फिर क्लिपबोर्ड है, या फिर इन द बुक है, जैसे इस तरीके से। हम इन डिटेल ये पिक्चर्स के साथ भी ये वापस हम करेंगे, ये जस्ट मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रही हूँ अकॉर्डिंग टू दैट बर्थडे केक, ओके। So using the schedule,
स्टूडेंट अभी ये कैसे स्केड्यूल यूज होता है, जैसे मैंने बताया कि उसका एक प्रोसीजर है. स्टूडेंट गोज टू द स्केड्यूल यूजिंग ट्रांजिशनल सिंबल. कि अभी ट्रांजिशनल गो देयर, ये जो एक सिंबल हम उनको दिखाएंगे, वहां से वो वहां पे जाएंगे. दे विल चेक द स्केड्यूल. ओके, तो सेम रूम में हो सकता है, डिफरेंट रूम में हो सकता है, डिफरेंट लोकेशन में हो सकता है. वो ट्रांजिशन क्लू के साथ वहां तक जाएंगे. सेकेंड, स्टूडेंट गोज टू स्केड्यूल यूजिंग वर्बल क्यूज. तो पहले हमने विजुअल क्यूज दिखाए, सेकेंडली हम अभी वर्बल क्यू. गो देयर एंड सी व्हाट इज नेक्स्ट. सो दैट इज वर्बल क्यू. और थर्ड में स्पॉन्टेनियसली बच्चा जा रहा है वहां पे और देख रहा है कि मेरा नेक्स्ट क्या है. अंडरस्टूड यहाँ तक? So these are the different ways to teach them how to use the schedule. ये work system, a systematic strategy to do the work. ये हम we are going to see कि work system क्या होते हैं, but it will again answer all these questions. So way to structure work system. Presenting single item task. एक बार एक ही आपको टास्क लेना है. ओके, उस टास्क को हम प्रॉपर वे लेफ्ट टू राइट अरेंज करेंगे. देन मैचिंग सिंबल्स, कलर्स, लेटर्स, नंबर जो भी हैं एक बास्केट में. आई विल शो यू द टीच बॉक्स हाउ टू यूज दैट एट द एंड. तो वो एक लेफ्ट से राइट से हम कर रहे हैं, तो वहाँ से वो कंप्लीट करने के लिए मैचिंग विजुअल सिंबल्स, जो भी सिंबल्स रहेंगे उस तरीके से बच्चा काम करेगा. मैचिंग वर्ड्स एंड कार्ड्स टू कंटेनर्स. जैसे वहाँ पे पिक्चर्स हैं कंटेनर्स में और द बच्चे को उस तरीके से एक्टिविटी वहाँ पे ओके. अंडरस्टैंडिंग फिनिश्ड, कहाँ पे वो फिनिश्ड हो रहा है. शी शुड अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर्ड वर्क सिस्टम. देन अभी डिसअपियर इनटू कंटेनर ऑन राइट साइड, जहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया वहाँ से अभी वो कंप्लीट हो गया है. मटेरियल आर प्लेस्ड ऑन शेल्फ और ऑन द राइट साइड टेबल. सो प्रॉपरली राइट टू लेफ्ट कहाँ होगा मटेरियल, कहाँ से स्टार्ट करेगा बच्चा, कहाँ पे एंड करेगा, दैट वी हैव टू प्लान. All visual symbols are gone from work system and matched to assigned containers. जहाँ से complete किए हुए वर्क चीज़ों को हमें वो असाइन कंटेनर में डाल देना है. इस सब के लिए विजुअल सिंबल्स बहुत जरूरी है. ओके, सो ऑल विजुअल सिंबल्स ऑन वर्क सिस्टम आर टर्न ओवर एज विजुअल. एक एक जैसे बच्चा करेगा, वी विल फ्लिप दैट थिंग, टर्न ओवर कर देंगे. मतलब एक एक वो पॉइंट, वो चीज हो गई है एंड द टास्क इज कंप्लीट. सो ऑल आइटम्स इन द लिस्ट आर मार्क्ड, चेक्ड एंड द टास्क इज कंप्लीट. Actually it is boring to teach or like that in a theoretical way. It is more of practical. Okay, routine and strategies, systematic and specific ways of approaching. First and then child should know कहाँ से start करना है, कहाँ पे end होना है. उसके बाद क्या होगा, check schedules, follow work system, and that is left to right or top to bottom, whatever. Visual that support explains routines, expectations or procedures. So these are some routine strategies. Visual structure task. Giving meaning to the activity by showing student what to do with the material to complete this task. हमने अगर बच्चे को कुछ टास्क दिया है, फॉर एग्जाम्पल सॉर्टिंग करना है एनिमल्स को, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स, तो ये टास्क दिया है. सो हाउ द चाइल्ड विल सॉर्ट दैट. तो उसके लिए विजुअल क्यू, जैसे अभी डोमेस्टिक एनिमल वेयर दे लीव वो पिक्चर, और वाइल्ड एनिमल वेयर दे लीव जंगल, तो वो पिक्चर, एंड द मिक्स्ड पिक्चर. सो चाइल्ड विल ईच एंड एवरी टाइम लुक एट द पिक्चर एंड सॉर्ट थिंग्स. विजुअल क्लैरिटी, हाईलाइटिंग द साइलेंट क्लूज ऑफ द टास्क. मतलब कहाँ पे हमें लगता है कि बच्चों को इस विजुअल
क्लू में भी कुछ और हाईलाइट्स करना ज़रूरी है. दैट वी हैव टू हाईलाइट. मटेरियल डिफाइन द टास्क. ऑर्गेनाइज एंड लिमिट मटेरियल्स. स्पेसिफिक ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल होना ज़रूरी है. बहुत कुछ अगर उस टेबल पे रहेगा तो चाइल्ड में गेट कंफ्यूज. पिक्चर इंस्ट्रक्शंस. विजुअल्स में जो भी इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा अगर हम पिक्चर्स में देंगे इंस्टेड ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शंस विल बी ईजियर फॉर द चाइल्ड. ओके, एंड देन रिटन एक्सप्रेशन इंस्ट्रक्शंस. So these are the different approaches and teaching methods. Again the same thing will come. Instructional approaches. एक है डेवलपमेंटल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच एंड कॉग्निटिव अप्रोच. चाइल्ड विद ASD जैसे हमने बोला कि 5 फिंगर्स मॉडल भी हम यूज कर सकते हैं. फर्स्ट उनका कम्युनिकेशन इश्यूज है तो हमें कम्युनिकेशन पे वर्क करना है. बिहेवियरल इश्यूज है, सेंसरी इश्यूज है, एकेडमिक्स है, ओके, एंड सोशल. तो ये 5 चीज़ों पे हमें बच्चों को मतलब जब हम IP बना रहे हैं तो हमें इस 5 चीज़ों से एकेडमिक्स से क्या हम करने, एवरीथिंग वी कांट डू. सो सम पार्ट ऑफ एकेडमिक. बिहेवियर में हमें कौन सा बिहेवियर, देयर आर मेनी बिहेवियर्स इन वन चाइल्ड, सो उसमें से हम कौन सा बिहेवियर चूज कर रहे हैं टू टैकल विद. फिर सेंसरी में क्या हम ले रहे हैं, फिर कम्युनिकेशन में क्या ले रहे हैं, और सोशल में क्या है. तो हर एक का IP में हर एक टॉपिक में वी विल कंसिडर कि कौन से सब टॉपिक्स हम ले रहे हैं. सो डेवलपमेंटल अप्रोच में आएगा फ्लोर टाइम. बिहेवियरल अप्रोच में आएगा डिस्ट्रिक्ट ट्रायल ट्रेनिंग एंड टीच. एंड कॉग्निटिव अप्रोच इज अ सोशल स्टोरी. सी इन डिटेल्स. सो फ्लोर टाइम. व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोर टाइम? किसी ने देखा है, किया है फ्लोर टाइम? It is going to be something like a circle time. ओके, हम सबने अपने बच्चों के साथ फ्लोर टाइम किया होगा. रीप्ले. Replay. या एंड वहाँ से हम जैसे कि ASD बच्चा जो होता है दे डोंट वांट टू इन्वॉल्व विद अदर किड्स और अदर पीपल. दे आर हैप्पी इन देयर ओन लाइफ और दे आर हैप्पी इन देयर ओन कंट्री. तो उनको वो ज़रूरी नहीं लगता कि मैं दूसरों के साथ इन्वॉल्व हूँ. तो उन बच्चों का अगर हम ज़बरदस्ती करें कि यू हैव टू टॉक टू मी, यू हैव टू सिट हियर, यू हैव टू डू दिस थिंग्स, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम. वो फिर बिहेवियर इश्यूज वहाँ से स्टार्ट हो जाता है. तो अगर हम धीरे धीरे बच्चे के एनवायरनमेंट में जा सके, जो बच्चों को पसंद है उसमें हम मीन्स अलाउ करें चाइल्ड हमको कि वो हम उसके एनवायरनमेंट में जाए, दैट इज अ फ्लोर टाइम एक्चुअली. तो ये इट इज अबाउट फ्लोर, मतलब नीचे बैठ के बच्चों के साथ बच्चा होना, दैट इज एक्चुअली अ फ्लोर टाइम. कि हम उनके साथ खेल रहे, उनके एनवायरनमेंट में, मतलब उनके जो टिपिकल उनके फ्रेम ऑफ इमेज है और उनका जो एक क्या बोलते हैं एक थिंकिंग है उनका, वो जो सोच रहे हैं उस सोच में, उस स्टोरीज में हमको जाना है. एंड देन वहाँ से हम अपना जो हमें जो सिखाना है वो चीज़ें हम कर सकते हैं. सो चाइल्ड इज ऑलरेडी प्लेइंग विथ सम ब्लॉक्स. Then we can slowly involve with the music blocks. This अभी colorful blocks है तो we can sing a song with colors. Then slowly child will allow you to play with him. And then you take it from that. Oh, this is square. Oh, this is triangle. वहाँ से फिर वो learning start होगी. So this is an intervention method designed for parents to help their children achieve the developmental milestones. ये बहुत माइलस्टोन्स डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अचीव करने के लिए बहुत अच्छा अप्रोच है. ओके, सेल्फ रेगुलेशंस, इंटरेस्ट, इंटीमेसी, टू वे कम्युनिकेशन, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, इमोशनल आइडियाज एंड इमोशनल थिंकिंग. ये सब चीज़ों के लिए
this approach is good. Okay, it's build healthy foundations for social, emotional, and intellectual capacities rather than focusing on skills and isolated behaviors. So यहाँ पे हम ज़्यादा focus skills learning पे नहीं दे रहे हैं. In this approach, we are focusing more on healthy, emotional attachment, intellectual capacities बच्चों के वहाँ पे जहाँ पे बच्चा है उस level पे ही जाके हम काम करें. So we are not more working on a skills development और teaching approach नहीं है ये. फेजेस में ये होता है. इंडिया में बहुत कम फ्लोर टाइम अप्रोच यूज होता है, बट आउटसाइड बहुत ज़्यादा फ्लोर टाइम पे फोकस हो जाता है. तो फर्स्ट इज प्रोफेशनल डू फ्लोर टाइम विद द चाइल्ड. हाउ वी शुड डू द फ्लोर टाइम विद द चाइल्ड. जो प्रोफेशनल इज डूइंग द चाइल्ड विद जो स्पेशल एजुकेटर है और साइकोलॉजिस्ट है, तो दे आर शोइंग how to do the floor time with the child. Parent is observing how they are doing. Okay, and then slowly parent is also learning that skill to do the floor time with the child. So these are the 3 steps or 3 phases. So parent change their style of relating to child with regard to a given milestone. Now we'll go to the second approach, that is ABA. I think ये बहुत लोगों को पता है. Applied Behavior Approach Analysis is application of behavior theories to education of children with autism. ABA is based on premise that environment has an effect on an individual's behavior. जो जैसे हम बच्चों के साथ बिहेव करेंगे वैसे वो डेवलप होंगे. तो एनवायरनमेंट का बच्चों के ऊपर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है. इफ़ वी प्रेज, अगर हमने आज कुछ अच्छा कुकिंग किया, अगर सपोज दूधी हलवा बनाया, बहुत अच्छा हो गया, लोगों को पसंद आया, तो वी टेंड टू मेक दैट अगेन एंड अगेन. अगर हमने कुछ अच्छा नहीं बनाया और हमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट मिल गया, तो हम वापस करेंगे क्या वो? सो सेम थिंग, इन्वायरमेंट से हम हमारे बिहेवियर को मतलब बिहेवियर मैनिपुलेट होता है. ओके, सो ABA टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर टीचिंग न्यू बिहेवियर्स, मॉडिफाई एंड टर्मिनेट माल एडेप्टिव बिहेवियर्स. जो भी हमने अगर कुछ रॉन्ग चीज़ें सीखी है तो वो भी चेंज करने के लिए ABA अप्रोच, और फिर नया कुछ सीखना है तो भी ABA अप्रोच इम्पोर्टेंट है. तो वहाँ पे शेपिंग है, reinforcement है, extinction and stimulus control. Shaping again reinforcement से, like positive reinforcement अगर हम बच्चों को दे रहे हैं तो obviously वो behavior वो बच्चा ज़्यादा करेगा. अगर उस बच्चे को हम negative reinforcement दे for particular behavior, ignorance, हम देख ही नहीं रहे हैं बच्चे को attention, मतलब अगर वो बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है और हम उसको attention, but ये नहीं होता है. most of the time हम ऐसे होते हैं कि बच्चा रोएगा तो हम उसको ज़्यादा देखते हैं, शांत बैठा है तो हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देखते हैं. बट दैट शुड बी इधर वे. अगर वो बच्चा अच्छा कर रहा है तो हमें उसको प्रेज करना है. वो शांत बैठा है, उसका जो एक बिहेवियर है वो नहीं कर रहा है, सपोज थ्रोइंग बिहेवियर है, तो वो बच्चा नहीं कर रहा है फॉर 5 मिनट्स, वो बच्चा नहीं करेगा ना, हर बार तो थ्रोइंग नहीं करेगा. सो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वी हैव टू प्रेज द चाइल्ड. उसको रीइंफोर्समेंट देना, उसको क्या पसंद है, इरेबल है, कुछ खाने को दे सकते हैं, उसको कुछ खेलना पसंद है, एक्टिविटी पसंद है, वी कैन इन्वॉल्व चाइल्ड इन दैट पर्टिकुलर. सो ही विल अंडरस्टैंड, अरे मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे अच्छी चीज़ें मिल रही है, सो आई शुड डू दिस मोर इंस्टेड ऑफ नेगेटिव बिहेवियर. ओके, सो इसमें रीइंफोर्समेंट, एक्सटिंक्शन. सो अगर हम एक चीज़ को इग्नोर करेंगे, बच्चा कुछ मांग रहा है और हमने उसको इग्नोर किया, उस चीज़ को बहुत बार कंटिन्यूस, ऑल इन्वायरमेंट सब लोग ने इसको इग्नोर किया, तो उसको समझेगा कि इस चीज़ के लिए मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो मैं ये चीज़ नहीं करनी चाहिए. तो ऑटोमेटिकली वो उसका बिहेवियर कम होते जाए.
स्टिमुलस कंट्रोल तो ये सब अप्रोचेस हैं और ये सब डिफरेंट कंटेंट है ABA के, जहाँ पे हम ये सब स्ट्रैटेजी से बच्चों का बिहेवियर टैकल कर सकते हैं. Okay. So AB is a systematic method है. We have to plan कौन सा behavior हमें आज उठ के इस behavior पे काम किया, कल उठ के ऐसे नहीं. We have to plan कौन से behavior पे हम काम करने वाले हैं, कैसे करने वाले, कौन सा shaping यूज करने वाले हैं या फिर reinforcement यूज करने वाले हैं. That we have to plan. Okay. So it will be it is the interaction between behavior and environmental factors, as we say. Reinforcement जैसे बनता है, so behavior और environment से जो हमें मिलता है उसका it is the interaction between these two. Applied means हाँ, it is behavioral targets are socially valued. It is applied behavior means that behavior is socially valued. Now I'm anxious and if I'm doing flapping or if I'm jumping, is that socially valid? No. But if I do this or raise my hand here to let out my anxiety, is this valid? Yes. So we have to teach the child what is applicable in the society. Clapping is not everybody, but if you feel, you can press your hands. If you feel, you can hug yourself. You can sit like this. You can. So whatever the applicable for that content, we have to teach. Systematic teaching of small units of behavior. एक बड़े से टास्क एनालिसिस करते हैं हम, so we behavior का भी टास्क एनालिसिस करना है. छोटे छोटे behavior पे we have to work. So 1-to-1 में start करेंगे, but then we have to apply in different situations, different environment. मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे डेटा रिकॉर्ड करना है रेगुलरली कि इस ट्रायल्स लेते हैं हम. तो इस ट्रायल में बच्चा ये बार 2 बार और कौन से प्रॉम्प्ट पे किया है ये एक्शन, दैट वी आल्सो हैव टू मेंटेन और कीप द रिकॉर्ड ऑफ. ये DTT इज वन ऑफ द अप्रोच ऑफ ABA. So if यहाँ पे you can see that the child, we are taking the things that look at me. मेरी तरफ देखो, as you say eye contact नहीं देते child with ASD और हमें उनका eye contact बढ़ाना है. So we can do this activity in DTT. So यहाँ पे क्या करना है? First you have to give the instruction, simple instruction. Look at me. अच्छा, instruction should be short and simple. बहुत ज़्यादा ग्रामर्स यूज़ करके बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं यूज़ करना है. शॉर्ट 2-3 वर्ड्स में एंड सिंपल इंस्ट्रक्शन. सो फर्स्ट विल गिव द इंस्ट्रक्शंस. लुक एट मी. ऑब्वियसली चाइल्ड विल नॉट नहीं देखेगा आपके पास. फिर वर्बल इंस्ट्रक्शन. अगेन यू हैव टू से लुक एट मी. नहीं देख रहा. जेस्चर प्रॉम्प्ट. लुक एट मी. लुक एट मी. फिर भी नहीं देख रहा, तो हमने पहले इंस्ट्रक्शन दिया, वर्बल इंस्ट्रक्शन दिया, वर्बल प्रॉम्प्ट दिया, जेस्चर प्रॉम्प्ट दिया. अभी भी फिर भी नहीं देख रहा है. देन आई विल होल्ड द चाइल्ड एंड लुक एट मी. अभी देखेगा, ऑब्वियसली देखेगा, बट ये टाइम पे भी वी हैव टू रीइंफोर्स द चाइल्ड. ओके, यहाँ पे भी जब भी हम फिजिकल प्रॉम्प्ट पे भी काम करें, वी हैव टू गिव द रीइंफोर्समेंट. Any questions? Any doubt? This is a physical prompt in the Yes. sense of district trial. District trial training. So there are, you said that one is a verbal instruction, then verbal Gesture. plus gesture. So that is a trial what we are doing. Yes. Yeah, we are doing the trials. Like पहले हमने instructions दिया, verbal instruction दिया, gesture prompt verbal instruction दिया, verbal prompt दिया, gesture prompt दिया, and then physical prompt दिया. We have to see कि बच्चा कौन से prompt पे कर रहा है.
कभी कभी वर्बल प्रॉम्प्ट पे करेगा. देन वी हैव हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा हाउ मेनी मिनट्स ही इज लुकिंग एट यू, हाउ मेनी सेकंड्स यू, तो उसको बढ़ाना है. कभी कभी बच्चा वर्बल जेस्चर प्रॉम्प्ट पे काम करेगा, तो हमें उसको वर्बल प्रॉम्प्ट तक लाना है. और करेक्ट प्रॉम्प्ट इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट लाना है. कभी बच्चा फिजिकल प्रॉम्प्ट पे भी कर रहा है, मतलब फिजिकल ऑब्वियसली करेगा, तो उससे वर्बल प्रॉम्प्ट पे, फिर जेस्चर प्रॉम्प्ट पे, फिर इंस्ट्रक्शन मतलब करेक्ट प्रॉम्प्ट पे लाना है. तो यहाँ पे टाइम लगेगा, ट्रायल्स लगेंगे. तो वी हैव टू नोट इट डाउन कि आज बच्चे ने कितनी बार, अगर मैं 5 बार ये सब चीज कर रही हूँ, तो उसमें से कितनी बार वर्बल प्रॉम्प्ट पे काम किया, कितनी बार जेस्चर प्रॉम्प्ट पे काम किया, कितनी बार फिजिकल पे काम. नेक्स्ट डे अगेन आई विल डू द सेम थिंग, वो रिकॉर्ड करूँ. सो स्लोली ग्रेजुअली चाइल्ड विल डू द जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो करेक्ट प्रॉम्प्ट पे करेंगे. सो दैट मीन्स द चाइल्ड इज अचीव. ओके, सो लुक एट मी. No response, so student looks at you in a physical prompt, verbal prompt, just a concept prompt, but then you have to give the reinforcement. That is more important in DTT. ठीक है. अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे कलर सिखाना है, रेड कलर सिखाना है. सो मैं बताऊंगी कि मैच रेड विथ रेड, चाइल्ड नहीं कर पा रहा. फिर मैं जेस्चर से बताऊंगी मैच रेड विथ रेड, नहीं कर रहा. फिर मैं बच्चे का हाथ लेके मैच रेड विथ रेड, बच्चे ने किया वाओ वेरी गुड, दैट इज माय रिइंफोर्समेंट. ठीक है. अभी कलर्स, ये अभी हम बात करें तो इसमें हम व्हेन यू आर टीचिंग कलर्स एक ही कंपोनेंट आपको लेना है. तो शेप में इसमें ट्रायंगल सर्कल में कलर्स वो नहीं हो सकता, वो कंफ्यूजन और क्रिएट करेगा. आपको कलर्स लेना है तो आपको एब्स्ट्रैक्ट शेप लेना है. आप अगर कलर सिखा रहे हो तो आपको एब्स्ट्रैक्ट शेप लेना है. ठीक है. तो ये हो गया रेड रेड. फिर मैं डिस्ट्रैक्शन कार्ड लाऊंगी एक कि यहाँ पे रेड है, येलो है. नाउ द चाइल्ड हैज टू मैच रेड विथ रेड. फिर ये नज़दीक होगा, फिर थोड़ा दूर होगा. सो एंड द चाइल्ड हैज़ टू मैच रेड विथ रेड. तो वो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा. किसी भी लेवल पे चाइल्ड वो मैच कर सकता है. ओके. नज़दीक है तो भी, फार अवे है, डिस्ट्रैक्ट कार्ड है तो भी बच्चा इज एबल टू मैच द कार्ड. So this is all about DTT. It is a very specific and systematic. क्या सिखाना है आपको, उसके ऊपर you have to develop, you have to do it. ठीक है. स्मॉल स्टेप्स में, छोटे स्टेप्स में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए. So DTT has been widely used for teaching compliance, concepts, communications and play skills to children with autism. DTT protocol recommends environmental structure when teaching a child with autism. So हमने वो देखा, structured environment is very important. Structured, so this is also structure. You don't have anything on the table except these cards. Only ये cards आपके पास सामने हैं और उसके साथ ही आप उसको सिखा रहे हो, और कुछ distraction नहीं होना चाहिए. So it is often used for young children. छोटे बच्चों के साथ ये ज़्यादा वर्क करता है. Cure time DTT. So this is the format of DTT. Okay. Clear beginning, ending, presentation of stimulus. क्या आप present कर रहे हो, कैसे present कर रहे हो. Prompt, verbal, gesture, physical prompt, and student response. You have to put it in a data. So prompts, different levels of prompt, how you will use. Full physical prompt, partial physical prompt है, gesture prompt है, modeling है, positional verbal prompt है जैसे मैंने बोला, least to most, कम से ज़्यादा, opportunity for independence, हम उनको independent बनाना है. तो डेफिनेटली हम प्रॉम्प्ट्स
ट्रेड करते जाएंगे, कम कम करते जाएंगे. अभी फिजिकल पे है तो जेस्चर पे लाएंगे, फिर वर्बल पे. पोजिशनल जैसे मैंने बोला, नज़दीक है फिर दूर है, दैट पोजिशनल वे आल्सो वी विल डिफर. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट ट्रेडिंग ऑफ प्रॉम्प्ट कैसे हो सकता है. Now this is teach boxes, treatment and education of autistic and other communication handicapped children. This is a short form of this teach. So it is again a structured learning, visual schedule है यहाँ पे. बच्चे को पता है कहाँ से start करना है, कहाँ पे end करना है. Independently child can work on this. अब अगर हमने उसको सिखाया अच्छे से, तो ये एक teach box है. Child knows specific काम के लिए हम specific teach box use कर सकते हैं. Okay, so this is teach box. यहाँ पे हमने देखा है कि मटार छिलना है, तो फर्स्ट क्या करेंगे, सेकेंड क्या, थर्ड क्या. So it's already वहाँ पे already है. Child will see and do it. So that is a structured way. This is all structure environments, teach box, first, then, and visual schedule that we have seen earlier. And cognitive approach है social stories. Social stories पता है? Okay. So it is about the अगर बच्चे की language अच्छी है, understanding अच्छी है, then we can use this cognitive approach for the social story, for social stories to teach child how to behave. Okay, so this is washing hands. So with the pictures and with specific instructions, we can use this. There are some social stories. So you can prepare your own social stories. You have social stories on the net available for a particular one picture and one sentence. So एक particular behavior के लिए आप ये social stories develop कर सकते हो. ये social story है. Remember to get the things from the school. The child is forgetting all the things in the school. So कैसे उसको समझाया जाए? So that is about it. So there are different social stories you can make. You have things are available different. बिहेवियर के लिए है, कम्युनिकेशंस के लिए है. So social study again, it is a structured understanding between children and the other people. Okay, accurate information, shortcut, specific, short and sweet. ऐसे होना चाहिए social stories, and it is involved in I. Not about some किसी का नाम लेके social stories नहीं होना चाहिए. It is involved I. So there are different strategies जो हमने पहले भी बात किया है. Location, furniture, visual support, personal connection. Problems mostly बच्चों पे होता है कि sitting in one place, following instructions, tantrum. ये भी हमने देखा कि ये क्यों होता है. Reasons: unable to understand the instructions, unable to communicate their needs, sensory issues. ठीक है, ये हमने देखा. And changes, not motivated to do the activities. So we have to, जो भी behavior बच्चा कर रहा है, we have to understand what is the reason behind it. Then only we can work more and better. Main उनका है I hear, I forgot, I see, I remember, and I do, I understand. So they do concrete learners है, visual learners है. So it's better. Prepare करो, predict, visual prediction, and practice what you are teaching. Building routines, visual clues, visual timers, first, then, I do, we do, and you do. Okay? So this is all about how we can teach ASDs, and these are the therapies that we can do with speech and language therapy or occupational therapy. They require all this for the support.